So welcome, and today we are discussing Waiting for Godot, that is by Samuel Beckett. So Waiting for Godot is from the Theatre of Absurd. And the Theatre of Absurd, it is a post-World War II designation of the particular plays of absurd fiction written by a number of writers. Primarily, they were the European writers who worked in it, especially in the late 1950s. It is also a term for the style of theater the play represents, because it seems a concept of absurd plays. In a way, we can say that it focuses more on the ideas of existentialism and express what happens when human existence lacks meaning or purpose, which is called nihilism or meaninglessness of life, and the communication breaks down ultimately. The structure of the play is always round shaped because the finishing point and the starting point, they almost seem the same. In a theater of absurd, we see that there are anti-characters, like they're not characters like typical dramas. They are absurd characters having grotesque personalities, and then there is anti-language. That language is the dialogues are not like the normal plays that we read. So the dialogues have repetition in them. The very short dialogues are there, and most of the dialogues are repeated. And then we find like the themes of it, like basically. So the crisis and cruelty of human beings is there in such plays, or dissimulation of the society is shown in the plays of theater of absurd, and isolation among people, the way they feel isolated even being in society. So ये सारी चीजें इसके बेसिक थीम है इस play stage के. Beckett, the writer, whose full name was Samuel Barclay Beckett, he was born in 1906 and died in 1989. He was the author, critic, and playwright, and the winner of Nobel Prize for Literature in 1969. So it is important for him. He wrote in both French and English, and is perhaps best known for his plays, especially An Attendant Godot, which means waiting for Godot, which we are to study now. So the play. अब इस प्ले में जो सेटिंग है वो एक शाम का वक्त है, एक कंट्री रोड है, और इसमें सिर्फ एक दरख्त लगा हुआ है. सो दैट इज द सेटिंग लाइक इट इज शोन हियर. सो ये सिर्फ सेटिंग है कि हमारे पास एक दरख्त है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, एक रोड है. एस्ट्रोगन इज ट्राइंग टू पुल ऑफ हिज शू, लेकिन वो उतार नहीं पा रहा. तो एक्शन बड़ा लिमिटेड है इसके अंदर. व्लादिमीर, second character, he enters and greets his friend Estragon, who informs him that उसने जो रात है वो एक डिच में गुजारी, उसे मारा गया था, और फिर वो अपने शूज उतारने में कामयाब हो जाता है. और फिर वो उसके अंदर देखता है कि शायद इसके अंदर कुछ है तो नहीं. और व्लादिमीर इज डूइंग द सेम थिंग. ही इज लुकिंग इनटू हिज हैट कि शायद उसके हैट में कोई चीज है. व्लादिमीर मीनवाइल मेंशंस उन दो चोरों के बारे में जो कि क्राइस्ट के बाद क्रूसिफाइड किए गए. वो एस्ट्रोगन से पूछता है कि क्या उस गॉस्पेल को जानता है. वो एस्ट्रोगन जो है वो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखता है होली लैंड्स की, और व्लादिमीर उसे बताता है कि उस जो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन से लगता है कि तुम्हें पोइट होना चाहिए. एस्ट्रोगन पॉइंट करता है उसके कपड़ों की तरफ, और व्लादिमीर इस बात पे बहस करता जाता है कि उन दो चोरों को, मीनवाइल दे आर डिस्कसिंग. एस्ट्रोगन उस जगह से जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर उसे रोकता है और उसे कहता है कि दे आर बोथ वेटिंग फॉर गोडो, और हम उसका वेट करेंगे, उसके बगैर हम जा नहीं सकते. अब इशू ये कि इन दोनों को नहीं पता कि गोडो कौन है, गोडो कब आएगा, वो आएगा या नहीं आएगा, क्या उसने आने का प्रॉमिस किया भी है या नहीं किया, और क्या वो उस जगह पे हैं जहाँ पे गोडो उन्होंने मिलना है. सो अल्टीमेटली हमें पता लगता है कि उनको ये भी नहीं पता कि अल्टीमेटली उन्होंने गोडो से क्वेश्चन क्या किया था, या वो गोडो का वेट कर क्यों रहे हैं. गोडो आ गए तो इससे क्या बात करेंगे.
तो स्ट्रगन जो है वो उस वेटिंग से बोर होता है और वो कहते हैं कि चलो टाइम पास करते हैं और ऐसे करते हैं, ये दरख्त है इससे लटक जाते हैं। तो वो दोनों इस आइडिया को पसंद करते हैं, लेकिन ये डिस्कस नहीं कर पाते कि कौन पहले करेगा। लटकना मतलब हैंग कर लेना एक दूसरे को। वो कहता है अगर एक मर गया तो दूसरा अकेला रह जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि हम वेट करें गोडो का इससे पहले कि वो आ जाए। अस्ट्रैगन व्लादिमीर से कहते हैं कि क्या अभी तक उनके पास राइट्स हैं। वो उसे बताता है कि हमने अपने राइट्स छोड़ दिए हैं, और फिर वो उससे खौफ इस चीज़ का फील होता है जब वो कुछ सुनता है। और उसके बाद व्लादिमीर अस्ट्रैगन को एक कैरेट देता है खाने के लिए, जो कि बड़ी पुरानी कैरेट होती है उसकी पॉकेट में। मीनवाइल टू कैरेक्टर्स कम, पोजो और लकी। सो पोजो जो है ही इज अ लीडर, रिंग लीडर। लकी जो है उसके पास एक रोप बंधी हुई है जो कि पोजो ने पकड़ी हुई है। उसने एक स्टूल पकड़ा है, बास्केट पकड़ी है, बैग और एक ग्रेट कोट, यानी वो बीस्ट ऑफ बर्डन उसका सामान उठा के ला रहा है। सो पोजो जो है उसने एक विप उठाई हुई है जो कि उसकी उस कमांड को शो करता है, जिससे वो लकी को कंट्रोल कर रहा है। अस्ट्रैगन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये पोजो शायद गोडो है, जो शायद हम नाम भूल गए हैं, या मे बी यही बंदा है जिसका हम वेट करें, क्योंकि वो जानते नहीं है कि गोडो कौन है। पोजो कुछ टाइम लकी को ऑर्डर्स देने में लगाता है। लकी बिल्कुल मशीन की तरह उसके ऑर्डर्स को मानता है, और पोजो जो है वो स्टूल रख के उसके ऊपर बैठ के फूड को खाता है जिसमें चिकन है, और हड्डियां जो है वो लकी की तरफ फेंकता है। सो लकी एक ही पोस्चर में वहां पे बैठा रहता है और कमांड्स का वेट करता है। अस्ट्रैगन और व्लादिमीर जो है वो लकी के पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि ये अपना बैग जमीन पे क्यों नहीं रखता, ये उठाए क्यों रखता है इसको। सपोज उनको जवाब नहीं देता। सो अस्ट्रैगन जो है वो उस चिकन बोन की तरफ जाता है जो कि उसने लकी के लिए फेंकी थी, और जब वो पूछते हैं लकी से कि क्या ये इसको चाहिए बोन मजीद, और वो उसे फिर भी जवाब नहीं देता, तो अस्ट्रैगन जो है वो उस हड्डी को हासिल करता है। पोजो इवेंचुअली उनसे बताता है कि लकी जो है बैग्स को क्यों उठाए रखता है। He thinks कि it is because Lucky is afraid of being given away, कि उसकी जॉब ना खत्म हो जाए। While Pozo tells them why Lucky continues to carry his bags, Lucky रोना शुरू हो जाता है। अस्ट्रैगन उसके पास जाता है, लेकिन वो उसे किक मारता है उसकी शिन में, जिससे वो जख्मी हो जाता है। पोजो उसके बताता है कि वो तकरीबन 60 साल से एक दूसरे के साथ हैं, यानी पोजो और लकी। तो व्लादिमीर उस चीज पे हैरान होता है कि किस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है एक फेथफुल सर्वेंट के साथ। पोजो कहता है कि ही कैन नॉट बेयर इट एनी लॉन्गर बिकॉज लकी इज सच अ बर्डन, एंड मोरओवर व्लादिमीर जो है वो लकी पे चीखता है कि लाइक ये इट इज अपॉलिंग द वे ही ट्रीट्स सच अ गुड मास्टर, क्योंकि वो डरते हैं पोजो से, पोजो के बिहेवियर से, उसकी शान शौकत से। पोजो फिर कुछ बातें करता है और उसके बाद वो लाइक वहां से बट नॉट एनीथिंग सीरियस इज गोइंग ऑन देयर। सो वो इनकी एक डिस्कशन जो है वो वहां पे देखते हैं जो चल रही है। लकी अपना डांस करता है और उसके बाद अस्ट्रैगन जो है वो उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इससे इम्प्रेस नहीं होता। फिर आफ्टरवर्ड्स उसके लाइक बड़ी एक एब्सर्ड डिस्कशन इनकी सामने आती है, जिससे हमें लगता है कि नो मीनिंग्स आर कमिंग आउट ऑफ द डिस्कशन। और उसके बाद फिर वो वेट करते हैं। मीनवाइल लकी और पोजो चले जाते हैं वहां से। एक यंग बॉय आता है और वो बताता है कि मुझे गोडो ने भेजा है, मिस्टर गोडो ने। और वो पहले, यानी अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कि कितनी रेपिटेशन है। वो कहते हैं कि क्या तुम कल आए थे? वो कहता नहीं मैं कल नहीं आया, कि हमें तो लगता है तुम कल आए थे, और वो शायद मेरा भाई होगा। इन अ वे इनको कल भी कोई आके बता गया था कि गोडो कह रहा है कि मैं कल आऊंगा। सो आज भी ये बच्चा आता है और वो कहता है कि गोडो ने मैसेज भेजा है कि वो आज नहीं आएगा, वो कल आएगा। तो वो दोनों इन द एंड कहते हैं कि चलो फिर हम चलें, लेकिन उनमें से जाता कोई भी नहीं है और वो दोनों वहीं पे बैठे रहते हैं। नेक्स्ट डे में सेटिंग सेम है, और हम देखते हैं कि अस्ट्रैगन के बूट और लकी का हैट वहीं पे है स्टेज पे। अस्ट्रैगन जो है व्लादिमीर वो एंटर होता है और वो कुछ गाने की कोशिश करता है, और
एस्ट्रागन व्लादिमीर की सिंगिंग पे अनहैप्पी है, तो वो इस बारे में कन्विंस है कि चलो हम इकट्ठे हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर गोडो, even though they find no potential in waiting for Godot and they don't know why they're waiting. Estragon and Vladimir, they talk about sideway things, आसपास की चीजों को डिस्कस करते हैं, which is of no use either. एस्ट्रोगन को सब कुछ भूल चुका है कि कल क्या हुआ था, वो लकी को भी भूल चुका होता है, वो पोजो को भी भूल चुका होता है, उसे अपने बूट्स का भी नहीं याद, उसे अपने बीटन होने का भी नहीं याद। और ये बेसिकली दिखाया गया कि एक दिन गुजर गया और हम एक नई दुनिया में दोबारा से आए जिसमें हम पुरानी बातों को भूल चुके हैं। चेंज सिर्फ इतनी है कि जो ट्री है उसके ऊपर कुछ पत्ते हैं वो निकल चुके हैं, और व्लादिमीर जब एस्ट्रागन की टांग देखता है तो उस पर अभी तक पस पड़ी होती है, जब उसमें क्योंकि लकी ने उसे किक मारी थी, तो यहाँ से उन्हें लगता है कि कल कुछ हुआ था। सो ये कोई और टॉपिक ढूंढते हैं डिस्कशन का, उन्हें कोई डिस्कशन का टॉपिक नहीं मिलता। फिर वो लकी और पोजो बन के प्ले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इससे भी बोर हो जाते हैं। कन्वर्सेशन इनकी बड़ी अब्यूजिव सी हो जाती है, फ्रेजेस यूज करते हैं, लेकिन ये उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते। Then they continue waiting and meanwhile Lucky and Pozo enter again. अब इस दफा क्या है कि पोजो जो है वो ब्लाइंड है और लकी चुप है, बोल नहीं पा रहा, पोजो देख नहीं पा रहा। तो लकी उनको रोकता है तो पोजो उसमें उससे टक्कर हो जाती है और वो दोनों गिरते हैं। व्लादिमीर जो है वो इस चीज को देख के बड़ा खुश होता है, हैरान होता है। एस्ट्रागन अगेन थिंक्स के इन अ फॉर्म कि शायद ये गोडो ही आ गया। व्लादिमीर जो है वो कोशिश कहते हैं कि पोजो चीख रहा होता है मुझे उठा लो, और वो ये डिस्कशन करते हैं कि हम इसको उठाएंगे तो हमें क्या फायदा होगा। तो लाइक इन अ वे के इनको वी फाइंड अ चेंज ऑफ फॉर्चून इन शेप ऑफ लकी एंड पोजो, कि उन दोनों के अंदर एक चेंज आ चुकी है। व्लादिमीर then ask Pozo to make Lucky dance to think for them again. पोजो उन्हें बताता कि लकी नहीं बोल सकता। व्लादिमीर कहता है कब से, पोजो कहता है कि पोजो गुस्से में आ जाता है और वो उसे यानी अपने क्वेश्चन बंद करने का कहता है। Meanwhile they get up and they leave. व्लादिमीर जो है वो कहता है कि like we don't know what is going to happen or what is going to be happening in coming days. There's no confirming of memories since Estragon always forgets everything what happened. So meanwhile boy comes again. अब ये जो boy है again he does they don't remember meeting the boy again doesn't remember कि वो मिला कभी एस्ट्रागन से और व्लादिमीर से, जिसका पास 2 मीटिंग्स में हो चुका है। वो उन्हें बताता है कि it is his first time कि वो उनसे मिल रहा है, और वो फिर बताता है कि गोडो आज भी नहीं आएगा और वो शायद कल आएगा। तो व्लादिमीर जो है वो उसके बाद दोनों उस बॉय के जाने के बाद बैठे रहते हैं एंड दे डिसाइड कि लेट्स गो, कल आ जाएंगे, लेकिन अगेन मूव कोई नहीं करता। सो वी सी के द प्लॉट इज वेरी a kind of anti plot जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा, a round plot, a kind of thing जिसमें जो चीज जहां से चल रही वहीं पे आ गई। They started with waiting and they ended with waiting. There was no change. The only change was के दरख्त पे कुछ पत्ते निकल आए और लकी और पोजो की फॉर्चून में थोड़ा चेंज आया। Rest of all the things remain same. They keep waiting for Godot, but they don't know who Godot is और वो कब आएगा। So humor and the absurd. So this is one theme कि ह्यूमर हमें नजर आता है लकी और पोजो के बिहेवियर में जब हम उनके डायलॉग्स को पढ़ते हैं। Absurdity is all there through the novel. Waiting is a theme जिसमें हम देखते हैं कि वेटिंग के ऊपर ये थीम है। They're waiting for someone, something to come. Boredom is there कि वो एक ही जगह पे बैठ के बोर हो जाते हैं, एक ही काम को रिपीट करके बोर हो जाते हैं। ये बेसिकली रिफ्लेक्शन है वर्ल्ड की कि दुनिया में हम रोज एक ही तरतीब से काम करते हैं और बाय द एंड हम बोर हो जाते हैं उन कामों से। कई लोग इसी वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। निहिलिज्म जो हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, जो कि हेमिंगवे के कैरेक्टर्स के अंदर भी है, वो यहाँ पे थिएटर ऑफ एब्सर्ड में भी है कि जहाँ पे मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ नजर आ रही है। ह्यूमैनिटी इज देयर व्हिच इज वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। एक कंपेनियनशिप है इन दोनों की कि कुछ लोग एक जैसी सोच के इकट्ठे बैठे हैं और कुछ वेट कर रहे हैं। सफरिंग्स हैं जो ह्यूमैनिटी की दिखाई गई। थिएटर ऑफ एब्सर्ड में सफरिंग्स का बड़ा रोल होता है कि इंसान सफर कर रहा है, इंसान के पास कोई चीज उसको बचाने के लिए नहीं है, हर चीज खराब हो चुकी है। लाइक
लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट में जेमी कहता है कि गॉड इज डेड एंड विद लाइक, अब गॉड इज डेड का मतलब ये नहीं कि माज़अल्लाह खुदा खत्म हो गए, ही मीन्स टू से कि वो उसकी जो मोहब्बत है वो नजर नहीं आ रही। सो वो बड़ी एक फिलोसॉफिकल और बड़ी एक पेसिमिस्टिक काइंड ऑफ थॉट है जो कि हम ऐसे प्लेस में देखते हैं। डिग्निटी है जो कि हम देख रहे हैं कि कोई एक कैरेक्टर है जिसके अंदर कुछ डिग्निटी नजर आ रही है, लेकिन वो कैरेक्टर कब आएगा कोई पता नहीं। अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम है कि they're both sitting at one place, they don't know what time it is, they just know that they are waiting for something. Godot is symbol. Now Godot may be symbol for some savior, कि कोई मसीहा है, वो आएगा और बचाएगा। Godot is a hope, a symbol of hope, and Godot is symbol for God. खुदा का भी सिंबल है कि कोई आएगा, कोई मसीहा, कोई होप, खुदा आएगा, बचाएगा, जिसे हम सारा काम पाकिस्तानियों की नेचर है कि हम खुदा पे छोड़ देते हैं कि एग्जाम आने वाले पढ़ लो भाई अल्लाह के वाले। सो द ट्री इज सिंबल कि जो ट्री है वो रीजनरेशन का सिंबल है, लेकिन साथ साथ बैरननेस का भी सिंबल है कि लाइफ जो है बिल्कुल बैरन है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ होप नजर आती है, वो होप खत्म हो जाती है। लकी के जो बैग हैं, बैगेजेस, ये वो इंसानों की लाइक वो बर्डन है जो उन्होंने अपने साथ मुफ्त में उठाया हुआ है, जिसकी उन्हें ज़रूरत शायद नहीं है। पोजो की रोप जो है वो रिप्रेजेंट करती है, सिंबॉलिक है अथॉरिटी का, कि दुनिया में कुछ लोग अथॉरिटेटिव हैं और कुछ सबमिसिव हैं। नाइटफॉल इज अ सिंबल ऑफ डेथ ऑलमोस्ट, जिसमें मौत को रिप्रेजेंट करता है। हैट वो जो एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं अपना सिर्फ टाइम पास करने के लिए, दैट इज ऑल्सो एन एक्सचेंज ऑफ आइडेंटिटी। जो बूट्स हैं वो सिंबल हैं उन मुश्किलात का जिसको ह्यूमन बीइंग्स फेस करते हैं, और जो बोन है ये उस लालच का सिंबल है जो कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेटिंग फॉर गोडो बाय सैमुअल बेकेट।